Hello dear viewers, today's topic will be electron displacements in a covalent bond. So under this heading, we will cover two basic topics. One that is called as inductive effect. Inductive effect. And number second, we will take inductive effect, and number second we will discuss electromeric effect. Electromeric effect. So we will take these topics one by one. First we will discuss inductive effect. What inductive effect means? Consider a carbon chain consisting of 3 or more than 3 carbon atoms, and at the end of this chain we have this X. This is any atom which is more electronegative than this carbon, carbon and carbon. So this X possesses more electronegativity than these 4 carbons. So let me number these carbons as 1, 2, 3 and 4. So as I have already told you, this X is more electronegative than this carbon number first. So in this case, the bond between carbon and carbon, these carbons, it is sigma. These bonds are sigma. So what inductive effect means? Due to presence of more electronegative atom at the end of chain, the electron density, that is sigma electron density, this sigma electron density, this will be moved towards more electronegative atom in the chain. Obviously, that is X halogen. This X may be equal to chlorine, bromine or iodine. So what will happen in this inductive effect? This X, the bond between carbon first and the halogen X, this will be drifted more towards X. This bond, or the electron density of this bond, will be drifted more towards halogen X. So this halogen X will exhibit delta negative charge. So carbon number first, which was sharing its electrons with this X, will bear delta positive, slight delta positive charge, because the bond between carbon and X is dragged more towards this X, this halogen atom. So next, in order to make it stable, the carbon number 1 puts strain on carbon number 2 and drags its electrons towards itself in order to make itself stable. As we know, this X is more electronegative atom. This X is more electronegative atom. So this X drags down the electrons of carbon number first. In turn, to make itself stable, the carbon number first drags its electrons, which are in this covalent bond between carbon number 1 and carbon number 2. So this drags these electrons towards itself and in that effect, this carbon possesses delta positive charge. So putting down strain on the carbon number second in order to make itself stable, the carbon number second in reverse puts its effect on the third carbon, and this bears triple delta positive charge. So this electron density, as you are visualizing it, this electron density from the carbon, it is shifted towards carbon number 2 to carbon number 1, and the electron density of carbon number 1 is shifted towards this X because X is electron withdrawing. So we call this effect as inductive effect. So how will we define it?
Thus, inductive effect will be defined as the transference or moment of sigma electron density towards the more electronegative atom in a chain. So we discuss inductive effect as the transference or movement of sigma electron density towards the more electronegative atom in a chain. But you need to understand one thing, that is, what you need to understand is that the magnitude of inductive effect, is seen up to 3 carbon atoms, and thereafter the strength of inductive effect starts to decrease. That is, the carbon number first will be affected more, the carbon number second will be affected less, and carbon number 3 will be affected so less. That is, this electron withdrawing effect of this X will with greater magnitude affect carbon number 1, then carbon number 2, then carbon number 3 and thereafter the strength of this inductive effect will start to decrease. So this is simple thing about inductive effect. Hope you will understand it. So next, inductive effect. We will classify this inductive effect on the basis of groups present. Inductive effect is classified into 2 types. Inductive effect is classified into 2 types. Number first, that is minus I effect, and number second is plus I effect. So inductive effect has 2 types, or it can be studied under 2 headings, that is minus I effect and plus I effect. So as earlier I have shown you, if a carbon chain at its end possesses any electronegative atom, it causes inductive effect. But we will study this in different perspective. Minus I effect, there are some groups, कुछ groups ऐसे होते हैं जो minus I effect cause करने वाले होते हैं, और हमारे पास कुछ groups ऐसे भी हैं which cause plus I effect. So minus I effect वाले कौन से ग्रुप्स हैं? क्योंकि आपने अभी जो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पढ़ाया मैंने, वहां पे जो इफेक्ट था दैट वाज ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज वो जो ग्रुप हमारे पास X प्रेजेंट था, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. सो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले हमारे पास कुछ ग्रुप्स है. वी विल हैव NO2, दिस विल कॉज ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट. NO2 है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, हमारे पास X होता है, दैट इज कोई भी हेलोजन. X इज इक्वल टू, ये हो सकता है क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन. सो अगर एक चेन के साइड पे इन ग्रुप्स में से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सो द इफेक्ट कॉज्ड देयर विल बी माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट को मैं आपको समझाऊंगा. तो प्लस आई इफेक्ट उन ग्रुप्स की वजह से होता है विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. माइनस आई इफेक्ट कॉज होता है उन ग्रुप्स की वजह से विच आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं अपनी ओर. और प्लस आई इफेक्ट होता है उन ग्रुप्स की वजह से विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सच एज हमारे पास होता है मिथाइल CH3, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. हमारे पास होता है इथाइल C2H5, या हमारे पास होता है टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 होल थ्राइस. सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल. अगर इन ग्रुप्स में से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है एक चेन के साइड पे, कार्बन चेन के साइड पे,
तो दिस विल कॉज ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट. सो प्लस आई इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट को आपने देख लिया. इंडक्टिव इफेक्ट में ही मैंने माइनस आई इफेक्ट को एक्सप्रेस किया, यहाँ आपको बताया. सो प्लस आई इफेक्ट को हम देखते हैं. सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं. हमारे पास 3 या 4 कार्बन एटम्स है और इस चेन के साइड पे CH3 ग्रुप, हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लस आई इफेक्ट वो देते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. एज वी नो मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां भेजेगा? सो ये जो मिथाइल प्रेजेंट है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. तो जब हम देखते हैं इस मिथाइल ग्रुप को, ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है. ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स C और C के बीच में, अगर हम इस टाइम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, सो दिस कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. This will behave as electronegative here because methyl group electron donating है. तो इस टाइम ये अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करेगा, क्योंकि इसको पता है ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बन यहाँ एक्सेप्टर बन जाएगा. सो हेंस इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो अगर हम देखें, ये मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजता है कार्बन नंबर 1 के पास. तो इसकी वजह से इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगी. डेल्टा पॉजिटिव क्यों? बिकॉज वी नो, अगर कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, या इन ए कंडीशन है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर्ड पेयर जो है, वो किसी और इलेक्ट्रॉन की, वो किसी और एटम की ओर जा रहे हैं, तो इस केस में हम दिखाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. सो ये कार्बन डेल्टा नेगेटिव शो करेगा. अब इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने इस कार्बन को दे दिए, दैट इज कार्बन नंबर 1. अब ये कार्बन नंबर 1 इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज को तो रख नहीं सकता, बिकॉज इसका नेचर है कि ये अपने पास ऑक्टेट ही कंप्लीट करके रखता है. बिकॉज ऊपर नीचे तो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो बराबर वैलेंसी 4 होगी. इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर करेगा, तो इस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा. दिस कार्बन विल हैव डेल्टा डेल्टा नेगेटिव. लेकिन जितना डेल्टा नेगेटिव इस कार्बन के पास है, वो उससे कम इसके पास होगा. सो ये अपनी चार्ज हटाने के लिए कार्बन नंबर 3 पे इफेक्ट डालेगा, डेल्टा 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 नेगेटिव. सो ये जो इफेक्ट है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे अगर हम देखें इस चेन के साइड पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये डोनेशन देता है, देगा वही जिसके पास होगा. सो मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रख नहीं पाता, इसकी वजह से ये अगले कार्बन पे इफेक्ट डालेगा, अगले कार्बन को देगा. ये वाला कार्बन भी स्टेबल 4 को ही लेके है, बिकॉज ऊपर नीचे इनके हाइड्रोजन्स होते हैं. सो ये वाला कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजेगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 3 कार्बन एटम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी होती है, दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज और इंक्रीज. सो हम देखते हैं इस केस में हम देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 ज्यादा इफेक्ट होगा, देन कार्बन नंबर 2 और लेस इफेक्ट होगा कार्बन नंबर 3. दैट इज व्हाई इट पॉजेसेस ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डबल डेल्टा नेगेटिव, एंड इट इज डेल्टा नेगेटिव. सो ज्यादातर इफेक्ट होगा कार्बन नंबर 1. सो याद रखिए इस इंडक्टिव इफेक्ट में या प्लस आई इफेक्ट में इतना ही कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, मैंने आपको दिखाया अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है चेन के साइड पे, सो द इफेक्ट कॉज्ड विल बी प्लस आई इफेक्ट. ओके, सो number 2 effect under this heading we will take, that is electromeric effect. After inductive effect we will take electromeric effect. So electromeric effect में आपको एक चीज याद रखनी है, it takes place in case of multiple bonds. क्योंकि आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट
सिंगल बॉन्ड्स के आसपास या उन कंपाउंड्स में होता है या उन चेन्स में होता है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड्स जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में जैसे कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है या डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मिल जाएगा या वहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर हम देखें, अगर हम डिफाइन करें इसको, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, जिसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन, सो इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहां इन दो बॉन्ड्स में से आपको पता है वन इज सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। पाई का नेचर ऑलवेज आपको पता है, सिग्मा डिलोकलाइजिंग, दिस पॉजेसेस नो डिलोकलाइजिंग नेचर, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं हो सकता। आपने वहां पे देखा फर्स्ट इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कराया जा रहा है या मूव होता है न कि एक सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो यहां पे हम देखते हैं अगर मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में देखो आप मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है, सॉरी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है इट शोज डीलोकलाइजिंग नेचर, डीलोकलाइजिंग, दिस शोज डीलोकलाइजिंग नेचर। डीलोकलाइजिंग नेचर का मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड है इट कैन इंटरचेंज इट्स पोजीशन, ये पोजीशन अपनी चेंज कर सकता है। सो तीन चांसेस होते हैं एक पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने में। आई विल सिंपली मैं आपको बता दूं पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट तीन तरीकों से कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी हैव एटम वाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल। ये जो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है ये भी सिग्मा है, ये पाई है, क्योंकि मैंने आपको बोला सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है और पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर सकता है। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो सकता है ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ये एटम वाई है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ये पाई जो है अपनी पोजीशन, या तो ये एक एटम के ऊपर चला जाएगा तो आपको रिजल्टेंट कंपाउंड ये मिलेगा सिंगल बॉन्ड वाई, वाई के ऊपर अब आएगा लोन पेयर और यहाँ सिंगल बॉन्ड ये रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पाई है, सो पाई इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे, यही चला गया वाई के ऊपर। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पाई बॉन्ड पोजीशंस चेंज कैसे कर सकता है। दूसरा चांस है ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड दूसरे तरीके से क्या कर सकता है, ये पाई बॉन्ड एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे जा सकता है, तो उस केस में आपको रिजल्टिंग कंपाउंड ये मिलेगा। दिस इज यहाँ पे माइग्रेशन शो हुई टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। हो गए दो चीजें और नंबर थर्ड है इस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियरेस्ट या एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन के ऊपर आ सकती है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाई और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि पाई बॉन्ड माइग्रेटरी नेचर और डीलोकलाइजिंग नेचर शो कर सकता है जो मैंने आपको दिखाया सो यहाँ पे मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स या मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है, वी हैव डबल बॉन्ड हियर, हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये डीलोकलाइजिंग नेचर शो कर सकता है अब देखते हैं हम। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको ये चीज याद रखनी है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, ये जो इफेक्ट है ये होगा खाली अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, सो अगर हम देखें, मैं इसी एग्जांपल को दिखाऊं, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो अगर अटैकिंग रिएजेंट आप ऐड करते हो, मैं यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम एरो शो कर रहा हूं, सो अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट ऐड करूं, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड है इट विल मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो रिजल्टेंट कंपाउंड ये होगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ के ऊपर आएगी चार्ज नेगेटिव और कार्बन के ऊपर होगी पॉजिटिव नेगेटिव
और अगर आप इस अटैकिंग रिएजेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन देखें, यहां पे अटैकिंग रिएजेंट को मैं रिमूव कर रहा हूं, तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, आपको दिख रहा है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये पाई बॉन्ड, ये याद रखें आप, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी वजह से आएगी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन बियर करेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन देखें आप, ये वाली, अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर रहा हूं तो ये वापस आ जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे और इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप्स का है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वी हैव, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ई इफेक्ट। ई इफेक्ट, इसके भी दो टाइप्स है, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। So electromeric effect is of two types, same to that of inductive effect. This is plus E effect, plus E effect, and we have minus E effect. Electromeric effect plus E effect, and we have minus E effect. Start. So plus I effect and minus effect, I effect, minus E effect, plus E effect and minus E effect we will discuss. So first we will take plus E effect, plus E effect, plus E effect. As I have already told you, this electromeric effect, it takes place in presence of attacking reagent. So minus plus E effect, if there is a multiple bond between two carbon atoms, any alkane where there is multiple bond between two carbon atoms in presence of attacking reagent, for example we have H positive as attacking reagent. I will write down here this H positive, this is attacking reagent. So as you know, electromeric effect is complete transference of pi electrons to the atom in presence of attacking reagent. So electromeric, you need to remember this definition, electromeric effect is complete transference of pi electrons to one of the atoms containing double bond in presence of attacking reagent. So complete transference of pi electrons to one of the atoms containing double bond in presence of attacking reagent. Attacking reagent. You need to remember the definition, so it will be easier for you to go through this plus I effect and plus E effect and minus E effect. So in plus E effect, in plus E electromeric effect, so we will have, if an alkene attacked by an attacking reagent as positive, which may be provided by an acid. This may be provided by an acid. So what will happen in plus E effect? In this case, we will see if this pi electron density is localized, is drifted towards this carbon, so we will have carbon single bond carbon. You should know this because carbon single bond, one of the bond that is usually pi, it is migrated towards this carbon, so it will be a negative charge and this will have positive. In this case we have attacking reagent H positive
So as we know, if this H positive goes to this carbon having positive charge, they will undergo repulsion. So as we know, like charge, these are plus and plus. If this hydrogen will approach this carbon, there will occur a repulsion. So due to that repulsion, this hydrogen, this attacking reagent, may not move to this carbon. Let me call this carbon number 1. This is 1, this is 2. So अगर ये H पॉजिटिव इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो इस कार्बन के पास भी पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, अटैकिंग रिएजेंट के पास भी. तो पॉजिटिव पॉजिटिव will undergo, these are like charge, this will undergo repulsion. So एक और चांस है जो हम देखेंगे, if this H positive will approach towards this carbon number 2. If this H positive will approach towards carbon number 2, so the resulting product formed will be carbon single bond carbon, and this attacking reagent will be attached to this carbon. This is our carbon number 2, this is our carbon number 1. So यहाँ पे हमने देखा, ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट. क्यों? बिकॉज अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन एटम के पास चला गया जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई थी. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लस ई इफेक्ट. आपको याद रखना है ये चीज कि ये H पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट है, ये उसी कार्बन के पास गया, ध्यान रखिए आप, ये उसी कार्बन के पास गया जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी. So in this case we call this effect as plus E effect. One more we have, that is minus E effect. अब हम minus E effect को डिस्कस करते हैं. ये चीज मैं आपके लिए रखता हूँ यहीं पे ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए. सो दूसरी चीज जो है हमारे पास that is minus E effect. अब हम देखते हैं फिर से यही, कोई भी अल्कीन लेंगे हम मल्टीपल बॉन्ड वाला, इसकी एग्जांपल है एसिड, इसकी एग्जांपल प्लस ई इफेक्ट की एग्जांपल है एसिडिक हाइड या एसिड कैटालाइज्ड. दीज आर एग्जांपल्स जिसकी है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, इसकी एग्जांपल है. और इसमें हम देखेंगे माइनस ई इफेक्ट में. अब हमारे पास अभी अटैकिंग रिएजेंट है Cn नेगेटिव, दिस इज साइनाइड नेगेटिव, और दीज आर कॉल्ड एज नाइट्राइड्स. सो इसके केस में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन नंबर 1 2. तो इसी तरह मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ इस चीज को. अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से इसी के पास भेजते हैं, सो ध्यान आपने प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में इसी चीज का रखना है कि अटैकिंग रिएजेंट कहां जाता है. अगर अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन के पास चला गया जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इफेक्ट है प्लस ई. और अगर यहां पे देखोगे माइनस ई इफेक्ट, अगर अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन के पास चला गया जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने लोकेट नहीं किया, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास नहीं गई, तो इफेक्ट होगा माइनस ई इफेक्ट. तो इस केस में हम देखते हैं C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर आएगी चार्ज डेल्टा पॉजिटिव और सिंपली पॉजिटिव, और इसके ऊपर आएगी नेगेटिव. क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट बियर्स नेगेटिव चार्ज, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के पास कौन सी चार्ज थी? पॉजिटिव. सो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इस टाइम कहां पे चला जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है. अटैकिंग रिएजेंट अगर ये नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव, जैसे वहां पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हुआ करती थी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपल हो जाएंगे. इसका मतलब ये इसके पास नहीं जा सकता. ये साइनाइड कहां जाएगा? उस कार्बन के पास हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा C सिंगल बॉन्ड C, और साइनाइड होगा इसके साथ अटैच. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इस इफेक्ट में हमने देखा कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास चला गया जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसने पाई बॉन्ड को भी रखा था सिंपली. और यहाँ अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन के पास नहीं गया, क्योंकि हमें पता है
यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये कार्बन नंबर 1 के पास चला गया बिकॉज उसके पास पाई बॉन्ड नहीं था. होप यू मे अंडरस्टैंड इट. स्टे होम, स्टे सेफ.